vector. In the previous topic we have discussed how do we add the two given vector. Now we are going to apply the method of product of two given vector. The two given vector can be product in two ways. The first way is the scalar product and second way is the vector product. So आज हम सीखेंगे कि किस तरह से दिए गए दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम प्रोडक्ट करते हैं. साथ ही साथ में we will learn about the properties of these two product of the vectors. So there are two way of product of vector. The first way is called स्केलर प्रोडक्ट. थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं, दिखाई कम पड़ता होगा आप लोग को. द फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड नंबर टू इज वेक्टर प्रोडक्ट. नो, जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट. सपोज दैट वी हैव टू वेक्टर are represented as vector A and vector B. अभी दो वेक्टर दिए गए हैं. Now we have to multiply the vectors in terms of scalar product. Now firstly we are going to discuss scalar product, then after it we will discuss vector product. तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि सपोज दैट टू वेक्टर आर वेक्टर A and B. स्केलर का मतलब है कि the vector which have only magnitude. So the product of two vectors are come in such a way that their product gives only magnitude, not direction. ठीक है. तो हम क्या बताएंगे, the scalar product, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं. We call it dot product also. इसको क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. नो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस स्केलर प्रोडक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट. द डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इन सच अ वे दैट देयर रिजल्टेंट कम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट, as their product of magnitude and the cos angle between them. So listen again carefully. The scalar product of two vector quantities are given as the product of their magnitude with the cos of angle between them. That means if two vectors are acting at a point with some angle, say theta, this is vector A and this is vector B, then the cosine angle will be, this will be A cos theta, or simply we can say this is B cos theta. So this is the definition of scalar product और डॉट प्रोडक्ट. तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट बी. यहाँ पे डॉट की मीनिंग अभी हम बताएंगे कि हाउ द डॉट ऑपरेट विद द टू गिवन वेक्टर. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. सो दिस इज द डेफिनेशन. नो, इसका मतलब एक और निकल रहा है कि when two vector quantities are multiplied by this way, that is by scalar way, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन निकलेगा, ठीक है. स्केलर का मतलब क्या हो गया कि when we multiply the two given vector in terms of scalar way, then their resultant, उनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा. कैसे, आपको पता है, यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कम्स वर्क्स. ठीक है. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई
when we multiply work with the force and displacement, so we well know that force and displacement are the vector quantities. So here we use the operation dot between F and S. Why? Because force and displacement multiplying in a vector way, or you can see in the scalar way, and that are given a scalar quantity. So वर्क क्या है बताइए? वर्क क्या है? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. So when force and displacement multiply together, it give work, which is a scalar quantity. तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्या कर रहे हैं? अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो जैसे 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 12 आया. इसी तरह से क्या कर रहे हैं, जब हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कुछ ना कुछ तो आएगा ना. और ये जो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो ये आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है, दैट इज अ स्केलर वन. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम क्या करते हैं, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं. तो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड वी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन वेक्टर. फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि the scalar product of the two given vector is given by their product in magnitude with the cosine angle between one of them. जो cos थीटा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं. Now we are coming through vector product. अब vector product क्या होता है? So vector product is also called क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं. नाउ इन द केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? क्रॉस का यूज करते हैं. जैसे यहां पे हमने डॉट का यूज किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉट वी विल यूज क्रॉस. बट द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस एंड डॉट विल इंटायरली डिफरेंट. Now, what is the definition of cross product? The cross product of two vectors defined as, क्या define करते हैं? It is given as the product of their magnitude. फिर से सुनिएगा. It is given as the product of their magnitude and sine of angle between them. यानी वहां पे क्या होता था? cos थीटा बनता था ना. यहाँ पे क्या बनेगा? sin थीटा बनेगा. ठीक है? तो instead of using cos theta we will use sin theta. But the difference of the dot and cross is one thing more. What? The direction of the magnitude will be just perpendicular. ये direction क्या होगी? Will be perpendicular to the point of action of the two vector in the plane. That means अगर हम इसको लिखें a cross b, तो a cross b बराबर क्या हो जाएगा आपका? AB साइन थीटा. A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा. एंड AB साइन थीटा के साथ में द डायरेक्शन n कैप. अब इसका प्रेजेंटेशन हम क्या करते हैं? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ A क्रॉस B या AB. तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है. तो ये समझ में आ गया आपको? फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि देयर आर टू काइंड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. फर्स्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड इज अ वेक्टर प्रोडक्ट. अच्छा, एक चीज और यहाँ पे एग्जांपल भी आपको बता दूं. नहीं आप कहोगे कि एग्जांपल तो सर ने बताएंगे. इन द केस ऑफ द कपल या टॉर्क. Torque is a kind of force or the kind of work that produce a rotational effect. जैसे ये पेन है, देखिए ये पेन है, ठीक है. अभी इस पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाए तो दे विल फॉर्म अ कपल एंड स्टार्ट टू रोटेट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर सेंटर. उसको सेंटर से क्या करेगा? घुमाएगा. ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे? कपल. एंड द कपल इज गिवन बाय टॉर्क एंड टॉर्क इज गिवन बाय वन ऑफ द फोर्स
into perpendicular distance from their axis of rotation. तो अब ये वेक्टर कैसे होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट. सो स्केलर प्रोडक्ट क्या हुआ, स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज अ डॉट प्रोडक्ट and it is given as the product of two vector quantities in such a way that their resultant after product comes scalar ones, and it is given by a dot b is equal to ab cos theta. ठीक है, एंड ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया आपका. एंड व्हाट अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट या आप कह सकते हैं इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट एंड इट इज गिवन एज a क्रॉस b बराबर ab sin theta. नाउ व्हाट इज ab, AB is the magnitude of the cross product vector A cross B. A cross B का magnitude है, and sin is the angle between A and B, and the direction of magnitude will be just perpendicular at the point of action, that will be normal, वो normally रहेगी. तो यहाँ पर भी क्या आप देख रहे हैं कि product of the इस vector also give the direction, यहाँ पर फिर से direction दे रहा है. So ये चीज समझ में आया, इसको रब कर दे रहे हैं. फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज, वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे. फिर नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल हाउ टू सॉल्व द डिफरेंट क्वेश्चन दैट कम्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट. चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. properties of scalar product. Scalar product, that means dot product. ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव. अभी कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या, कॉम्यूटेटिव मतलब हो गया इफ टू वेक्टर्स आर multiplied in scalar way, then their order of way of multiplication में भी चेंज. जैसे ए तीन चौक 12, 3 4 जब 12 लिख सकते हैं, 4 3 जब 12 लिखते हैं, दैट इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं क्या, बी डॉट ए. ठीक है, ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं क्या, बी डॉट ए. कैसे, हमें पता है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ये होता है, अभी जस्ट इसके पहले बताया हमने आपको. एंड बी डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंजेस, तो ये हो जाएगा क्या, बी ए कॉस माइनस थीटा. नो, व्हाट इज द कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या है, कॉस माइनस थीटा बिकम कॉस थीटा. तो ये क्या हो गया आपका, बी ए कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा. तो इन दोनों से आपको दिख रहा है क्या, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए. लिख सकते हैं ना, बोलिए. अब इसके बाद क्या है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस सी
बराबर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, लिख सकते हैं इसको। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद अगर हम कहें कि इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 90 डिग्री। दैट मीन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो प्रोडक्ट ऑफ टू सच अ वेक्टर विच आर जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर विल बी a डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिखाई पड़ रहा है आपको। फिर फोर्थ केस, इफ टू वेक्टर्स आर जस्ट पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल होने पे क्या हो गया, दे विल फॉर्म द इक्वल वेक्टर कॉन्सेप्ट। अब इक्वल वेक्टर कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर विल बिकम 0, and in such a case when the two vectors act parallel to each other, their product will be just come into as a magnitude of them. That means we can write here a dot b is equal to ab for equal vector cos 0, and value of cos 0 is 1, so a dot b will become b. Now in terms of अगर यूनिट वेक्टर बात करें, तो what will be happen if we multiply I dot I, J dot J and K dot K। I dot I को मल्टीप्लाई करेंगे, J dot J को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। सपोज दैट वी आर मल्टीप्लाइंग टू ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर I dot I। नो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो हम a डॉट बी बराबर क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो I डॉट आई क्या लिखेंगे, अभी देखिए समझिए, यूनिट वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, एंड I डॉट आई का मतलब क्या है कि वी आर डूइंग ऑपरेशन बिटवीन द टू इक्वल वेक्टर acting in the same direction, that means theta will become 0। so the magnitude of I dot I, इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हुआ, तो I डॉट आई इज इक्वल टू 1 1 1 एंड cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो I डॉट आई हो, चाहे J डॉट J हो और चाहे K डॉट K हो, तीनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम करते हैं I का J से करते हैं, J का K से करते हैं, तो I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज I J K आर द ऑर्थोगोनल म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो 90 डिग्री बनाते हैं। I J के साथ 90 बनाएगा, J K के साथ 90 बनाएगा, K I के साथ 90 बनाएगा, तो I डॉट I विल बिकम 1 इंटू 1 cos 90, और cos 90 की वैल्यू आपको पता है ना, 0 होती है, तो हो गया। So these are the properties related to the scalar product, ये scalar product की प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, साथ ही में डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1, ये 5-6 प्रॉपर्टी जो भी डिस्कस किया गया है इसी को साथ में डिस्कस कर लेते हैं, क्या जाता है। चलिए ठीक है, तो पहली चीज हम कम्यूटेटिव को लेके चलते हैं। तो कम्यूटेटिव के केस में क्या होता है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहला नियम ही फेल हो जाता है भैया, क्या, A क्रॉस B विल नॉट बी इक्वल टू B क्रॉस A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा। दैट मीन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज आर एंटी कम्यूटेटिव, एंटी होता है, यानी A क्रॉस B विल नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, पहली चीज हो गया।
अभी दूसरा हम लेते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑर्डर लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑर्डर फॉलो करता है, यानी यहाँ पे अगर हम क्रॉस लगा दें तो ए क्रॉस, ध्यान देखिएगा, ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक, फिर तीसरा क्या बताया था? तीसरा बताया कि इफ टू वेक्टर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90, अभी साइन 90 हो गया, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ए क्रॉस बी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जीरो नहीं होगा, दिस विल बिकम ए बी के बराबर होगा। एंड व्हेन टू इक्वल वेक्टर्स आर ऑपरेटिंग, दो इक्वल वेक्टर ऑपरेट होते हैं, तो वहां पे ए क्रॉस बी एंगल कितना बनता है, 0 बनता है, साइन 0। एंड व्हाट अबाउट द साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। अब देखिए एक चीज और समझिएगा कि दो स्केलर प्रोडक्ट अगर इक्वल वेक्टर में है, जैसे हम वेक्टर ए डॉट ए करें, ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस 0, कॉस 0 वैल्यू 1 हो गई, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए विल बिकम इक्वल टू ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो इफ टू वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई ए डॉट ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। बट ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के केस में क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर 0 हो रहे हैं आपके, थीटा 0 बन रहा है, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, टोटल हो गई। तो अगर हम इसको ए क्रॉस ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 0 होगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी देखो ये बताया हमने कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तीसरा क्या बताया, 90 डिग्री का केस बताया। चौथा क्या बताया, 0 डिग्री का केस बताया। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। अब यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जैसे हमने आई डॉट आई निकाला, जे डॉट जे निकाला, के डॉट के निकाला, इसकी सबकी वैल्यू कितनी है, 1 1 आई ना। लेकिन अगर हम आई क्रॉस आई निकालें, जे क्रॉस जे निकालें या के क्रॉस के निकालें, तब क्या होगा, फिर से देखो कॉन्सेप्ट वही आ रहा है, सेम वेक्टर हो गया, दैट मीन एक्टिंग विद द सेम एंगल इन द सेम डायरेक्शन, थीटा विल बिकम 0। तो आई क्रॉस आई बराबर आई आई साइन 0। नो, आई आई का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर 1 1 हो गया, और साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो देख लो जरा, खत्म हो गया हमारा, आई क्रॉस आई बराबर मैग्नीट्यूड 1 1 हो गया, एंड साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। तो आई क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली के क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज और चेंज होता है, क्या, ये थोड़ा सा साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा तो माइनस हो जाएगा। आई जे के अगर हम लेके चलते हैं, आई जे एंड के, तो आई क्रॉस जे, ठीक है, विल गिव के, आई को जे से करेंगे तो आई क्रॉस जे विल गिव के, जे क्रॉस के करेंगे तो विल गिव आई, एंड के क्रॉस आई करेंगे तो इट विल गिव
6। अभी एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या कि अगर j क्रॉस k करेंगे, i क्रॉस k करेंगे तो माइनस j मिलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमने पे क्या हो जाता है, ये नेगेटिव देता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। तो फिर से मैं इसको एक बार बता देता हूँ, आप फटाफट इसको सुन लीजिए, फिर बाकी हम लोग क्या करते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज इतना पढ़ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो मैं कल भेजूंगा। वी विल ट्राई टू सॉल्व द सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन भी आपको कल पढ़ाया था मैंने, वेक्टर एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके चलते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दोनों को लेके चलते हैं, और कई सारे क्वेश्चन लगाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, तो मजा आएगा लगाने में भी। और देखते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो देयर आर टू वे टू प्रोडक्ट द वेक्टर्स। फर्स्ट वे इज द स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड वे इज द वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, एंड वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो वी कैन से सिंपली दैट द ऑपरेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर इन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ डॉट प्रोडक्ट is given as a dot b is equal to ab cos theta, and cross product is given as a cross b is equal to ab sin theta. And definition of scalar product is given: the product of two scalar quantity, the product of two vector quantity in a scalar way comes in a scalar quantity. That means if we multiply two vector quantity in the scalar method, their resultant comes scalar. इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था कि वर्क is a scalar quantity which is obtained when the multiplication of two vector quantity force and displacement is done. ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज अब ये सारी बताई हमने, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, दैट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर क्वांटिटी इज अ vector quantity, that means their resultant will become vector, and it is given as the product of their magnitude and the sign of angle between them. इसी तरह स्केलर में the dot product a dot b बराबर ab cos theta is defined as it is a scalar product which comes as the product of their magnitude and the cosine angle between them. फिर प्रॉपर्टीज भी सारी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो इतना पढ़िए बेटा, ठीक है, मन लगा के इसको पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंट वे in which different questions we will observe, and will try to solve all the problems related to the vector addition, or simply we can say the vector operation. Okay,